ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومتی کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ وزیر خزانہ کمیٹی کے کنوینر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کمیٹی وفاقی حکومت کے تمام اداروں میں 360 ڈگری جائزہ نظام کے نفاذ کا جائزہ لے گی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی کارکردگی کے نظام کی بہتری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی میں وزیر توانائی، وزیر موسمیاتی تبدیلی، چیئرمین FBI اور دیگر شامل ہیں۔ کمیٹی FBI کے موجودہ فریم ورک اور نتائج کا تجزیہ کرے گی۔ تمام وزارتوں اور سروس گروپس میں 360 ڈگری ماڈل کے اطلاق اور توسیع کی جانچ ہوگی۔ قانونی اور انتظامی تبدیلیوں کی ضرورت کا تعین بھی کمیٹی کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ وفاقی اداروں کے لیے معیاری جانچ اور فیڈ بیک نظام تیار کیا جائے گا۔ پائلٹ مرحلے اور مکمل نفاذ کے لیے مرحلہ وار منصوبہ کمیٹی تیار کرے گی۔ کمیٹی 30 دن میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمول لیویز اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں پیش آیا۔ لیویز اہلکار پولیو مہم کے دوران بچوں کو ویکسین پلانے والی ٹیم کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مستونگ میں انسداد پولیو مہم کی سیکیورٹی ٹیم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لیویز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر الجمیل کی اس دعا کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ امن دشمنوں کو، معصوم شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والی انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس قسم کے واقعات حکومت پاکستان کے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عوام مایوس نہ ہو، اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے پلا کر ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ انسداد پولیو مہم ہر صورت میں مکمل تحریک کے ساتھ جاری رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے کے بارے میں حسب روایت بھارتی میڈیا نے من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا اور بالخصوص را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا اہم موقع پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھی بھارت کا دورہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی مودی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے متعدد بار فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچاتی رہی ہے۔ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 27 سیاح ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے پہلگام میں حملے کے نتیجے میں سیاحوں کی ہلاکت پر پاکستان نے رد عمل دے دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے حملے پر میڈیا کے سوالات پر کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاحوں کے جانی نقصان پر تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہلاک افراد کے عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کرتا ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ جموں کشمیر میں فائرنگ کے نتیجے میں 26 سیاح ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ 22 سرن وادی میں پیش آیا تھا۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے افراد پر بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ فالس فلیگ کا ڈرامہ رچانا بھارتی روایت ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے تحقیقات کے بھارت پاکستان پر الزام ڈال دیتا ہے۔ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے بھارت اس واقعے کی مکمل چھان بین کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنسیاں دہشت گردی کے واقعات میں خود ملوث ہوتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہے۔ کلبھوشن کا بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نیا مانیٹرنگ یونٹ بنانے اور کلینک آن ویلز کے لیے مزید گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का अहम इजलास हुआ। इजलास में शोबा सेहत से मुतालिक कई बड़े फैसले किए गए। इजलास में पहली बार हेल्थ डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी दी गई। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिजिटल रेफरल सिस्टम लाने और क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए जदीद गाड़ियां खरीदने का भी फैसला किया गया, जिसकी तादाद मई के आखिर तक 544 तक पहुँच जाएगी। इजलास में बताया गया कि मराकिज़े सेहत की आउटसोर्सिंग कामयाबी से जारी है। 982 मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के लिए 9000 डॉक्टर्स की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि 315 मरियम नवाज अस्पताल जॉइंट वेंचर मोड पर चलाए जाएंगे, जिनके लिए 93 दरखास्तें आ चुकी हैं। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के 500 अफराद का पहला बैच 28 अप्रैल से काम शुरू करेगा। इजलास में हेल्थ केयर सर्विस बिल 2025 समेत ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और लाइसेंसिंग जैसे अहम मामलात का भी जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी हैं। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी पीटीआई के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालिफत करने का हक रखते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि मुलजिम के फोटो, ग्रामेटिक, पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दरखास्त में इस्तदार टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि किसी आम कातिल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन कमेटी खतरात में कमी और तवाजुन से मुमकिन है। ISPR के मुताबिक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज में उभरती टेक्नोलॉजीज के दौर में एटमी फैलाव के अनवान से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन, अमरीका, कैनेडा और यूरोपीय इदारों के माहिरीन और दानिशवरों ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसलसल पर यकीन रखता है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल मुकालमे और ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म को उजागर किया। विफाकी वज़ीर खजाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग इजलासों के मौके पर आलमी मालियाती इदारों और बैनुल-अक़वामी बैंकों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें की। उन्होंने इदारा जाती सरमायाकारों को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, माली और मॉनेटरी इस्लाहात और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया और बताया कि साख्ती इस्लाहात के मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं। फिच रेटिंग में बेहतरी को पाकिस्तान के मालियाती इस्तेहकाम की अलामत करार दिया। डोइचे बैंक के आला सतही वफ्द से मुलाकात में विफाकी वजीर ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी जाहिर की और पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा पर जोर दिया। मुलाकातों में सवाल जवाब के सेशन में पाकिस्तान की इक़्तिसादी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत CDA में अहम इजलास हुआ। अवामी मंसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला किया गया। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और मजीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का फैसला किया गया। फैसल चौक पर 2+2 लेन के अंडरपास प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अंडरपास की मनसूबाबंदी करते वक्त मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखने की हिदायत की। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फूड स्ट्रीट पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत की। शहर के दीगर मकामात पर पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला किया गया, जबकि इन मकामात की निशानदही जल्द करने की हिदायत की गई। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुदम आगा, चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, IG पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी, CDA बोर्ड मेंबरान, जिला इंतजामिया और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को 2030 तक बरामदात को $100 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान बहरीन सरमायाकारी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत 2030 तक तरक्की का जामे रोड मैप तैयार कर लिया है। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात में नुमाया इजाफे के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल जारी है। उड़ान पाकिस्तान का विजन बरामदात पर मबनी मईशत का क़याम है। विफाकी वजीर ने कहा कि एक्सपोर्ट जोन्स, सनती कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक सहूलतों की
तामीर हुकूमती तरजीह है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और साजगार माहौल फराहम कर रही है। सनअती शोबे की बहाली और तोसी के लिए जामी इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं। FBR, SECP और दीगर इदारों में इस्लाहात से कारोबारी माहौल बेहतर बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने रवा साल सितंबर में सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियों का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत की नई शराइत भी तय की गई हैं। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन के ओहदे के लिए कम अज कम BA, वाइस चेयरमैन के लिए FA, जबकि काउंसिलर के लिए मैट्रिक की तालीम लाजिम करार दी गई है। ज़राए के मुताबिक नए मुजव्विज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत ज़िलाई काउंसिलें खत्म कर दी गई हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना मजीद कम कर दिया। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान के लिए रवा माली साल की मौशी शरह नमू मजीद कम कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया गया है। जनवरी 2025 में यही तखमीना 3% था, जबकि अक्टूबर 2024 में IMF ने उसे 3.2% करार दिया था। IMF ने आइंदा माली साल के लिए भी शरह नमू में कमी का अंदेशा जाहिर किया है, जिसके बायस पाकिस्तान के मुकर्ररा मौशी अहदाफ के उसूल पर सवालात उठ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, मालियाती दबाव, महदूद बरामदात और अंदरूनी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल मुल्क की मईशत की सुस्त रवी की बड़ी वजूहात हैं। IMF की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत मुकर्ररा शरह नमू हासिल करने में नाकाम रह सकती है। मौसम का अहवाल शामिल करें। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने शहर कायद के बासियों को खुशखबरी सुना दी है। गुज़िश्ता कई रोज से जारी हीट वेव का जोर टूट गया। समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू, मौसम में बेहतरी का इम्कान है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शामिर राजपूत। जी शामिर, क्या सूरत हाल है मौसम की? अजी, शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो हीट वेव जारी है। हीट वेव की एक लहर थी जो शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बन रही थी। शहर कायद में महकमा मौसमियात के एलामिया के मुताबिक अब जो हीट वेव की लहर है वो ख़त्म हो चुकी है, जबकि मौसम जो है गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 2 रोज़ में शहर कायद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान मौजूद है। समंदरी हवाएं जो है शहर कायद में बहाल रहेंगी। 24 से 29 अप्रैल के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में, जिसमें उमरकोट, थर पारकर और मीरपुर खास, यहाँ पर जो है हीट वेव का जो है वो एक नई लहर दाखिल होगी। इन इलाकों का जो दर्जा हरारत है उसके अंदर 2 से 4 सेंटीग्रेड जायद जो है वो गर्मी महसूस की जाएगी और रिकॉर्ड की जाएगी। शहर कायद के हवाले से बात करें तो शहर कायद का मौसम इस वक्त गर्म और मरतूब है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और आइंदा कई रोज़ तक जो है मौसम जो है इसी तरह बतदरीज जारी रहेगा। जी।